Hello students, good morning to all of you. As you know that I'm on the Easy Hai online platform. As you know, learning is easy with Easy Hai online. So we at the platform of Easy Hai online decided to start a marathon of English grammar. As you know that half yearly exams are approaching and now it is going to be important for all of you, whether you are from class 8, whether you are from class 12, now it's going to be a very important session for you all. So please focus here, and today I'm basically going to start a topic that is tense. So let's start. See, if I talk about the word tense, then tense is basically derived from a Latin word tempus, which means time. So tense basically denote what? The time period. A verb indicating the time of an action, of an event, of a condition by changing its form. एक वर्ब जो है वो क्या डिनोट करता है? तो किसी भी एक्शन को, जैसे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है? एक्शन वर्ड्स है. सो वर्ब बेसिकली इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन कि आपने वो पर्टिकुलर काम कब किया, प्रेजेंटली किया या पहले कर चुके थे या आने वाले दिनों में करने वाले हो, बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म. और आपको भी पता है कि अगर हम प्रेजेंटली कोई काम कर रहे हैं और उस काम को हमने लाइक पास्ट में किया हुआ है और आने वाले दिनों में करने वाले हैं, तो सारे वर्ब फॉर्म्स क्या होते जाएंगे? चेंज होते जाएंगे. सो इफ आई टॉक अबाउट द वर्ड टेंस हियर, देन आपको सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि टेंस एक टाइम पीरियड को डिनोट करता है. क्लियर? नेक्स्ट. सो इफ आई टॉक अबाउट द टाइम फ्रेम, then on the basis of time frame, the tenses is basically divided into three parts. First is past tense, second is present tense, and third is future tense. So see, past tense क्या होता है? जो काम आप already कर चुके हो past में, ठीक है? You are not doing currently and you are not going to do later. Clear? So past tense वो है. बाकी अभी मैंने definitions लिखे हुए हैं and you will see everything here. So present tense क्या होता है? तो जो चीज आप प्रेजेंटली कर रहे होते हो, ठीक है? एंड फ्यूचर टेंस क्या है? तो इट मीन्स आप आने वाले दिनों में करने वाले हो, ठीक है? अभी आपने नहीं किया बट आप आने वाले दिनों में करने वाले हो. क्लियर? नेक्स्ट. इफ आई टॉक अबाउट द पास्ट टेंस, देन हाउ विल यू डिफाइन? The past tense basically expresses any action or situation that was started or finished in the past. मतलब कोई भी काम आपने पास में स्टार्ट किया था और आपने पास में ही उसको क्या कर दिया? फिनिश कर दिया. सो दिस मीन्स पास्ट टेंस बेसिकली एक्सप्रेसेस एनी एक्शन दैट यू हैव डन इन द पास्ट एंड यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड दैट. क्लियर? नेक्स्ट. A tense expressing, if I talk about the next topic that is present tense, then a tense expressing an action that is currently going on or a state that currently or generally exists. So present tense क्या होता है? कि जिस काम को आप currently कर रहे होते हो. Finally, here the present tense basically express that it means that any action that is currently going on, कि अभी आप वो काम को कर रहे हो. Clear? Next. Future tense. If I talk about the future tense, then it is a verb form that generally marks the event not having happened yet but expected to happen in the future. मतलब अभी आपने कोई काम किया नहीं है but you have decided to do later. It means कि आप आने वाले दिनों में उस काम को करने वाले हो, अभी आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है. Clear? Next. See, if I talk about the differentiation or you can say the kinds of tenses, so first let's take the tenses, the three tenses here that are basically further divided into like this: indefinite or simple, and continuous or progressive, and then perfect, or you can also say complete, and last one is perfect continuous. So it was like that. If I talk about tense, then as you know that tense is basically divided into three parts. That is present tense, past tense, and future tense. Clear?
तो इफ आई टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, अभी हमने देखा कि टेंस के तो 3 काइंड्स है, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंट टेंस, देन इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स, एंड सेम विथ past tense also, it is also divided into 4, and same with the future also, it is also divided into 4 kinds. Clear? So let's take one by one. If I talk about the kind of present tense, then the first kind is simple present tense, and the second one is present continuous tense, and the second last is present perfect tense, and the last one is present perfect continuous tense. So see students, as you are on the Easy Hai online platform, so you are going to study the easy tricks about learning these all kinds of tense. So if I talk about the simple present tense, तो आपको क्या याद रखना है? See, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है और ते है, वो क्या कहलाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब आप बोलोगे मैम ता है, ती है, व्हाट इज दिस? सी, राम आम खाता है, सो हेयर ता है, द लास्ट, आप सेंटेंस का लास्ट वर्ड देखो, राम आम खाता है, तो ता है. सीता नाचती है, ती है. वे दौड़ते हैं, ते है. तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, वो क्या कहलाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. क्लियर? अभी मैं आपको इसका रूल भी बताऊंगी, स्ट्रक्चर भी बताऊंगी कि आपको एग्जैक्टली सिंपल प्रेजेंट के टेंसेस को कैसे फॉर्म करना है. क्लियर? सो फर्स्ट लर्न द ट्रिक्स हियर. If I talk about present continuous tense, so जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है एंड रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. क्लियर? तो जैसे मैं बोलूं राम आम खा रहा है, सीता स्कूल जा रही है. सो दिस वाज लाइक कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. क्यों? क्योंकि अभी आप उसको कॉन्टिन्यूअसली वे में कर रहे हो. क्लियर? नाउ इफ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन परफेक्ट टेंस में क्या होता है? लास्ट में आपको क्या चेक करना है? चुका है, चुकी है, चुके हैं. इट मीन्स कि जो काम आप प्रेजेंटली कर चुके हो, उसने अपना काम, वह अपना काम कर चुका है. ठीक है? तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, वह खाना खा चुके हैं, मैं पढ़ाई कर चुकी हूं. तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा. क्लियर? नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो सी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए ना एक रूल है जो कि आपको ध्यान रखना है. यहाँ पे जैसे मेंशन्ड भी है, और ये एज इन सबके लिए ही है. मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ कैसे. इफ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये बेसिकली टाइम पीरियड बताता है, और टाइम पीरियड भी देखो शॉर्टर पीरियड और लॉन्गर पीरियड की बात करता है. शॉर्टर पीरियड एंड लॉन्गर पीरियड. तो जब भी शॉर्टर पीरियड की बात होती है तो उसमें हम क्या लगा देते हैं? फॉर. और जब लॉन्गर पीरियड की बात होती है तो उसमें हम क्या लगा देते हैं? सिंस. तो ये ध्यान रखना है आपको. क्लियर? सो अगर आप टेंसेस को देख रहे हो यहाँ पे, तो टेंस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 काइंड, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तो प्रेजेंट टेंस को हमने फिर सब डिवाइड किया 4 टाइप्स में, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका ये है कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, वो क्या कहलाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा. अगर हमने देखा कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा. एंड इफ आई टॉक अबाउट चुका है, चुकी है, चुके हैं, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ये तीनों वर्ड्स आ रहे हैं, इट मीन्स दिस इज बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस.
एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने टाइम पीरियड की बात की, शॉर्टर पीरियड एंड लॉन्गर पीरियड, कि शॉर्टर पीरियड के लिए हमें फॉर लगाना होता है एंड लॉन्गर पीरियड के लिए हमें सिंस लगाना होता है। तो आप बोलोगे कि मैम ये फॉर सिंस अभी क्लियर नहीं हुआ, इट विल गोइंग टू बी क्लियर लाइक दिस, कि आप क्या करने वाले हो अभी, जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड सेम विद पास्ट टेंस ऑल्सो, इफ आई टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस, देन देयर इज सिंपल पास्ट टेंस, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. And if I talk about the future tense, then simple future tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. Clear? So now see one by one. अगर आपको ये नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेनी है, तो you can go for that. Clear? Next. If I talk about simple tense, simple tense क्या होता है? Simple tense does not indicate whether the action is complete or not. मतलब simple tense आपको ये बताएगा कि कोई भी काम अगर आपने करा है तो वो exactly वो complete है या complete नहीं हुआ है, मतलब इस चीज़ के बारे में वो आपको नहीं बताता, ठीक है। नेक्स्ट है continuous tense. So continuous tense is an action still going on, कि जो काम आप अभी कर रहे हो, जो action आप अभी perform कर रहे हो, currently going through that. नेक्स्ट है perfect tense. Then it indicates that that action is complete or finished, कि आपने कोई काम जो किया था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि जैसे राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, उसने खा लिया है या खाएगा या क्या है वो चीज़ हमें पता नहीं लग रही, तो इट इज़ बेसिकली सिंपल टेंस। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस में हमने क्या देखा था, राम आम खा रहा है, मतलब वो काम को अभी कर रहा है, तो इट मीन्स वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। एंड इफ आई टॉक अबाउट द परफेक्ट टेंस, तो जैसे जो काम आप कर चुके होते हो प्रेजेंटली, जैसे उसने वह खाना खा चुका है, ठीक है, तो ये काम वो ऑलरेडी कर चुका है, तो इट इज बेसिकली परफेक्ट टेंस। एंड नाउ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, दैट इंडिकेट्स दैट द एक्शन बिगैन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, कि कोई ऐसा एक्शन था जो पास्ट में हो चुका था और अभी भी चल रहा है, जो मैं टाइम पीरियड की बात कर रही थी। क्लियर? सो लेट्स सी नेक्स्ट. If I talk about the past tense, so see simple past tense, the kinds of past tense are simple past tense, the past continuous tense, the past perfect tense and the past perfect continuous tense. तो simple past tense को पहचानने का तरीका क्या है, तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, that means राम आम खाता था, तो ता था, वे लोग दौड़ते थे, ते थे, वह नाचती थी, ती थी। तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे होगा, वो क्या कहलाएगा, पास्ट टेंस कहलाएगा। क्लियर? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी एंड रहे थे, ठीक है, तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, खा रहा था, राम आम खा रहा था, वह नाच रही थी, वे दौड़ते थे, दौड़ रही थी, वह दौड़ रही थी, तो ऐसे रहा था, रही थी, रहे थे होगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ पास्ट परफेक्ट को पहचानने का क्या तरीका है, तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी एंड चुके थे, तो वो क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड अगेन इफ आई टॉक अबाउट द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसको अभी आपने पास्ट में करा था एंड ये वाला काम जो है वो अभी कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं 2 सालों से अंग्रेजी की पढ़ाई कर रही थी, तो आपने 2 सालों से बोला, इट मीन्स आप करेंटली तो कर ही रहे हो, प्लस आप पास्ट में भी कर चुके हो। क्लियर? तो ये ध्यान रखना। अभी हम स्ट्रक्चर पे आएंगे तो मैं आपको और बेटर एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सो सी इफ आई टॉक अबाउट द वर्ड सिंपल पास्ट टेंस, तो देखो सिंपल पास्ट टेंस को फॉर्म करने का तरीका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस कब यूज किया जाता है, तो इट इज बेसिकली यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन एंड एन इवेंट और अ कंडीशन दैट हैज अकर्ड इन पास्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि ये वो एक्शन के बारे में बताएगा जो आपने पास्ट में किया है, बट ये कंप्लीट एक्शन के बारे में नहीं बताता, ठीक है। और आपको इसको पहचानने का तरीका क्या था कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी एंड ते थे, तो वो क्या बन जाता है, सिंपल पास्ट टेंस।
So if I talk about the structure, that is subject plus verb का second form plus object. See, मैं खेलता था, I played. So I is subject here and the played is verb का second form. अब आप क्या खेलते थे, that is not mentioned, so that's why object is not here, but the structure is subject plus verb का second form plus object. Clear? Next, he or she played. वह खेलता था, वह खेलती थी, तो it means this is going to be a subject here and played is basically the verb ka second form here. Clear? So this is basically simple past tense. Next, if I talk about the past continuous tense, then the past continuous tense is used to describe ongoing actions in the past. कि आप ये काम past में already कर रहे हो and like अभी भी वो चीज हो रहा है, ठीक है? तो मतलब कोई भी काम जो आप पास में कर रहे थे एंड इट वाज लाइक अभी भी कंटिन्यूअसली वो चल रहा है, इट मींस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज बेसिकली यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑनगोइंग एक्शन दैट इज बेसिकली डन इन द पास्ट. क्लियर? सो इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर हियर, देन द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. See, this is going to be a structure for past continuous tense. तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से. तो पहला एग्जाम्पल है I was playing. So I is basically the subject here. Was is helping verb here. ठीक है? And playing is basically verb का first form plus ing. So structure is clear कि I was playing. मैं खेल रहा था. ठीक है? Next, he or she was playing. वह खेल रही थी. Clear? तो he or she is going to be what? Subject. And was is again an helping verb here. And playing, that means verb का first form plus ing. Clear? Next, you were eating. So you is basically तुम खा रहे थे. You is basically subject. Were is basically the helping verb here. And eating is basically verb का first form plus ing. So for making the past continuous sentence, you have to use this structure, that is subject plus was या were plus verb की first form plus ing plus object. और कैसे पहचानना है हमें ये टेंस? जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, इट मीन्स वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. क्लियर? नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस. If I talk about the past perfect tense, then it is basically used to describe an action that took place in the past and was completed. कि इस काम को आपने पास में किया और आपने उसको कंप्लीट भी कर दिया. मैं खा चुका था, मतलब यू आर बेसिकली जो आप कह रहे हो कि आप खा चुके थे, इट मीन्स कि आपने खाना स्टार्ट किया होगा एंड आप खा चुके हो, मतलब यू आर फिनिश्ड विद ऑल दैट. क्लियर? तो अगर मैं बात करूँ उसके स्ट्रक्चर का, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. Clear? So this is going to be a structure for past perfect tense. Clear? अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. एग्जाम्पल है जी, I had played. मैं खेल चुका था. So subject is here I. Had is basically the helping verb and played is basically what? Verb का third form. Now the next one is he or she had played. If I talk about the word here, he or she, then it is going to be a subject here. Had is the helping verb here and played is basically the verb का third form. तो अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर से लाइक सेंटेंसेस फॉर्म करना है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, मैं खेल चुका था, वह खेल चुकी थी, सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रक्चर दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? और अभी मैं वर्ब के फॉर्म्स पे भी आऊंगी, बट एक बार टेंसेस का टॉपिक स्टार्ट किया है तो आपको लाइक सारी चीजें क्लियर करा देती. नेक्स्ट, so the next one is past perfect continuous tense. What is this past perfect continuous tense? So see, so this tense is basically used for an action that began at a certain point in the past. मतलब ये past में किसी एक certain point पे start हुआ था and continued till a certain time in the past and continue भी रहा. ठीक है? past में किसी एक certain time तक continue भी रहा. तो अगर मैं बात करूंगी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इट इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर
plus object. So this is going to be a structure for past perfect continuous tense. तो example से समझ लेते हैं. I had been playing. So if I talk about the structure, if I go with this structure here, then here I is basically a subject, had is basically a helping verb, clear? And playing is basically a verb का first form plus ing, clear? And अगर इसके आगे मैं ये लगा देती that I had been playing for 2 hours, कि मैं 2 घंटों से खेल रही थी, तो क्या बन गया? For is basically here for a shorter period, because अभी आपने ये काम सिर्फ 2 घंटों के लिए किया है, क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि मैं 2 घंटों से खेल रही थी. He or she had been playing, वह 2 घंटों से, अगर मान लो 4 लगा दो, वह 2 घंटों से खेल रही थी, तो he or she, she had been playing for 2 hours, क्लियर? और अगर आप कुछ इसमें सिंस लगाना चाहते हो, तो सिंस लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लॉन्गर पीरियड चेक करना पड़ेगा. वह 2 सालों से अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहा था, तो he had been studying English since 2 years or for 2 years. 2 years is also a shorter period, then it will be for. And if I talk about कि वह बचपन से खेल रहा था, तो he had been playing since childhood. तो हमने childhood के साथ क्या word use किया? Since. And since is basically for a longer period. So this is basically all about the past perfect continuous tense, and the structure is subject plus had plus been plus verb की first form plus ing plus since या for plus object. Clear? Now next. Now we will talk about the present tense. As I have stated earlier also, that is present tense is further divided into 4 types, that is simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. तो मैंने आपको बताया था कि present perfect tense को पहचानने का तरीका क्या है. तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो एग्जाम्पल से ले लेते हैं. वह खाता था, तो वो क्या था? सिंपल पास्ट था. अगर मैं बोल दूं वह खाता है, तो वो क्या बन गया? सिंपल प्रेजेंट. ठीक है. नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो इसको पहचानने का क्या तरीका है? रहा है, ठीक है, रहा है, रही है एंड रहे हैं. तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड्स आ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, वो क्या बन गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. वह आम खा रहा है, वह आम खा रही है, वह पढ़ाई कर रही है. तो रहा, रही, रहे जब भी आएगा तो वो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं. तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड्स आएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, कि वह काम कर चुका है, वह खाना खा चुकी है. तो समथिंग लाइक दैट. इट मीन्स वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हियर. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वही वाली बात, टाइम पीरियड के बारे में बात होगी यहाँ पे भी. और मैंने आपको डेफिनेशन पहले से बता दिया, तो आप स्लाइड्स को पीछे करके भी देख सकते हो कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में क्या डिस्कस किया था. कि हमने एक सर्टेन पॉइंट पे कुछ स्टार्ट किया था और वो अभी चल रहा है, क्या प्रेजेंटली चल रहा है वो. ठीक है. नेक्स्ट. सो अब एक एक करके देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है. तो देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज बेसिकली यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और अ कंडीशन दैट इज बेसिकली अकरिंग इन द प्रेजेंट. कि जो चीज़ अभी प्रेजेंटली, कोई भी इवेंट कह लो, कोई भी कह लो आप, कोई एक्शन कह लो, जो आप कोई भी कंडीशन कह लो, जो आप अभी प्रेजेंटली कर रहे हो. तो अगर सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर देखना है तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगा देते हैं? एस या ई एस. इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट एंड प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर. सो अगर एग्जाम्पल देखो क्या है? आई प्ले, मैं खेलता हूँ. तो आई प्ले, आई इज द सब्जेक्ट हेयर एंड प्ले इज बेसिकली द वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेयर. नाउ एज आई सेड ना कि वर्ब का फर्स्ट के साथ आप एस और ई एस लगाते हो. तो सी, वह खेलती है या वह खेलता है, तो इट मीन्स he or she will be the subject here and plays is basically verb का first form plus s और es. So जिस भी subject के साथ verb का first form plus s और es लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? simple present tense. Clear? Next. तो अगर आपको याद करना है simple present tense का structure, तो आप क्या ध्यान रखोगे कि subject plus verb की first form
या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट, then plus object. So this will be the structure for making the sentence of simple present tense. Clear? Next. See, if I talk about the present simple, then it is also used to talk about activities that happen repeatedly. सिंपल प्रेजेंट टेंस उन एक्टिविटीज के बारे में भी बात करता है जो बार बार चीजें हो रही होती हैं, एंड द थिंग्स दैट वी डू रेगुलरली, और ये उनके बारे में बताता है जो चीजें आप ऑन अ रेगुलर बेसिस करते हो, डेली बेसिस पे करते हो, सच एज हैबिट्स एंड रूटीन्स. क्योंकि देखो, आप सुबह उठते हो, स्कूल जाना होता है, ब्रश करना होता है, लंच पैक करना होता है, स्कूल जाके पढ़ाई करनी होती है, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, सो दैट विल बेसिकली कम अंडर सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, तो जो आपके डेली रूटीन्स हो गए, जो आपकी हैबिट्स हो गई. So adverbs of frequency are often used with the present simple tense. For example, अब like if you are saying that I play golf every Monday, तो अगर हम adverb of frequency की बात करें, now we are basically talking about adverb of frequency, तो वो हमेशा simple present tense के साथ use होता है. Like see, I play golf every Monday. So this is adverb of frequency कि आप हर Monday को क्या करते हो? गोल्फ खेलते हो. And this is basically your routine habits कि आप ये काम करते ही करते हो. नेक्स्ट, दे ऑफन ट्रेवल टू चाइना, वे चाइना को जाते रहते हैं, है ना. तो उनका है कि वो अभी प्रेजेंटली सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ यूज कर रहे हो. शी गेट्स अप एट 8 एवरी डे. ठीक है, कि वो कब उठती है, हर दिन सुबह 8 बजे उठती है, तो ये भी उसका डेली रूटीन है. हाउ ऑफन डू यू स्टडी, कितनी देर तक तुम पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई तो करते ही हो ना, तो ये तो तुम्हारे डेली रूटीन्स एक्टिविटीज में आ गई. तो ये सारी चीज जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कह लो, या जो एक्टिविटीज आप करेंटली प्रेजेंट में ऑन अ डेली बेसिस परफॉर्म कर रहे हो, सो दैट इज गोइंग टू बी अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. क्लियर? नेक्स्ट. Secondly, we also use the present simple tense to talk about the factual information. See, like general truth के लिए, साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए और डेफिनेशंस के लिए. हम हमेशा, आप ध्यान रखोगे, जैसे आप साइंस की स्टडी करते हो, ठीक है, या कुछ आप यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हो जिसको बदला नहीं जा सकता, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करते हो, तो आप वहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. अब वाटर तो बॉयल करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे करेगा, दिस इज बेसिकली द साइंटिफिक फैक्ट. तो देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया. नेक्स्ट, डॉक्टर स्टडी फॉर मेनी ईयर्स. डॉक्टर्स जो है, ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर बनने के लिए बहुत सालों तक पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. सो हियर वी आर यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट, द स्काई इज इन ग्रीन. क्या स्काई ग्रीन हो सकता है क्या? ऑब्वियसली नो. तो ये तो जनरल ट्रुथ है, तो जनरल ट्रुथ के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते, यूज मतलब जनरल ट्रुथ के साथ हम यूज कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है द वर्ड स्मार्ट मीन्स इंटेलिजेंट. हियर द वर्ड बेसिकली मीन्स, द स्मार्ट वर्ड का क्या मतलब होता है, इंटेलिजेंट. तो इट मीन्स आप कभी कभी डेफिनेशंस के लिए, जनरल ट्रुथ के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए जिसको बदला नहीं जा सकता है, साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए आप क्या यूज करते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हो. क्लियर? नेक्स्ट, we also use the simple present tense with stative verbs, that is the non-action verbs. अब आप बोलोगे ना, non-action verbs ये क्या है? Just to talk about the states or the conditions such as physical descriptions, the feelings, the relationships, the knowledge, the beliefs or the possessions. तो इन सब चीजों के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, stative verbs यूज करते हैं. लाइक बेसिकली सिंपल प्रेजेंट के साथ हम स्टेटिव वर्ब्स यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली द नॉन एक्शन वर्ब्स. सो देखते हैं क्या है. कभी आपको लाइक कोई फीलिंग्स शो करना है, रिलेशनशिप्स के बारे में बता रहे हो, नॉलेज के बारे में, बिलीव्स के बारे में, तो वहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज किया जाता है. सो दीज ऑल आर द यूजेस. सो टेक एन एग्जाम्पल, दे लाइक स्ट्रॉबेरीज. उनको क्या पसंद है, आपने लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में बात की है यहाँ पे, तो उनका बिलीव लाइक दे बेसिकली लाइक स्ट्रॉबेरीज. ठीक है. नेक्स्ट, वी वॉन्ट अ न्यू कार. तो यहाँ पे देखो, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, वॉन्ट इज ऑल्सो द फर्स्ट फॉर्म, दे इज द सब्जेक्ट हेयर, स्ट्रॉबेरी इज द ऑब्जेक्ट हेयर. क्लियर? वी वॉन्ट अ न्यू कार, द वी इज सब्जेक्ट हेयर, वॉन्ट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड न्यू कार इज ऑब्जेक्ट हेयर. नेक्स्ट, आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू, आई इज द सब्जेक्ट हेयर, प्रॉमिस इज द वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. क्या, आई प्रॉमिस दैट आई विल हेल्प यू. नेक्स्ट, यू लुक फैंटास्टिक, I don't know the answer. So देखो, ये सारे sentences जो हैं,
ये हमारे कुछ ऐसे नॉन एक्शन वर्ब्स हैं कि पसंद करना कोई एक्शन वाली तो बात नहीं है ना, चाहना, वादा करना, ठीक है, देखना, तो मतलब कुछ इस तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं लाइक आपको फोकस करना है जो नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जिसको लाइक फील किया जा सकता है, तो उस केस में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, we use the present simple to describe the situations that are more or less permanent. आप बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस को वहां पे भी यूज कर रहे हो, वैसे सिचुएशंस के लिए भी यूज कर रहे हो, दैट इज मोर और लेस परमानेंट। सो सी, इफ अ सिचुएशन इज न्यू और टेम्पररी, यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और अगर कोई सिचुएशन नया है, टेम्पररी है, तो आप वहां पे क्या यूज करो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करो, दैट इज सब्जेक्ट प्लस SMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये अभी हम देखेंगे। सी फॉर एग्जाम्पल, दे वर्क एट अ बैंक, वे कहाँ पे काम करते हैं? बैंक में काम करते हैं। आई ट्रैवल एवरी समर, शी हैज 2 daughters, वेयर डू यू लिव? ही इज मैरिड, आई एम नॉट अमेरिकन, आई एम कैनेडियन। सो सी, we use the simple present tense just to describe a particular situations that are more or less permanent. So these all are the situations where you can also use the simple present tense. Clear? Next. The next one is the simple present tense is also used with the zero conditional. Zero conditional कि जहाँ पे आप conditions लगाते हो, like my boss gets angry if I am late for work. See, here if is here and your boss is getting angry, so you can also use the simple present tense like that. My boss gets angry if I am late for work. Next, I am disappointed if you don't pass your exams. आप disappointed हो जाओगे कब? जब अगर आपने एग्जाम पास नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू गो टू द डॉक्टर इफ यू आर सिक? क्या आप बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो? तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे जीरो कंडीशन वाली बात हो रही है, तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट। क्लियर? नेक्स्ट, we use the simple present tense to talk about what happens in books, movies and plays. कि एग्जैक्टली आपने कोई मूवी देखी, आपने कोई प्ले देखा, तो उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ, तो आप उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी कौन सा टेंस यूज करते हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हो। और देखो, ये सारी चीजें बताने का मेन मोटिव यही है कि एज यू नो दैट यू आर इन द एकेडमिक्स एंड आपके पास एडिटिंग एंड ओमिशन वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वहाँ पे टेंस का कौन सा स्ट्रक्चर यूज करें, कौन सा वर्ब फॉर्म्स यूज करें। तो अगर आपको इन सारे पॉइंट्स का नॉलेज रहेगा तो आप सेंटेंस पढ़ के भी ध्यान रख सकते हो कि मुझे कहाँ पर कौन सा टेंस यूज करना है। सो देखो, जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कर रहे हो तो यू कैन ऑल्सो यूज फॉर टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंस इन द बुक्स, मूवीज एंड प्लेस। सो टेक एन एग्जांपल लाइक a young woman travels through Europe where she meets different people and finally falls in love. तो यहाँ पे एक सिचुएशन, एक मतलब लाइक कह लो एक ऐसा सिचुएशन बताया गया जो मतलब कह लो बुक में है या फिर किसी मूवी में है, और आपने उस सिचुएशन के लिए भी क्या यूज किया? सिंपल प्रेजेंट। देखो यहाँ पे women के साथ आपने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES। क्लियर? falls in love is also same. So simple present tense आ रहा है ना। नेक्स्ट है, in this book the hero saves the princess and marries her. saves and marries आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES, तो ये ध्यान रखना है। The next, the main character is very pretty and works at a cafe. So this is basically the uses of simple present tense where you can talk about what happens in movies, what happened in the plays or drama. Clear? Next. See, if I talk about the future schedules, the timetables and the fixed plans that are basically expressed with the simple present tense. अगर आपका कोई फ्यूचर का शेड्यूल है या फिर आपका कोई टाइम टेबल है या आपके कोई फिक्स प्लान्स हैं, तो उसको भी आप सिंपल प्रेजेंट में ही बताते हो। यूजुअली व्हेन दे आर सेट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट बाय अस, एंड खासकर तब इस चीज़ को बताया जाता है जब इस चीज़ को किसी इंस्टीट्यूशन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया था। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल बिगिन्स एट 9 एंड एंड्स एट 3। तो ऐसे सिचुएशन में भी देखो हमने क्या यूज किया है? सिंपल प्रेजेंट यूज किया है। The next one is the plane doesn't arrive at 3, it arrives at 3:30. ठीक है? When does the movie start? The bus leaves every 15 minutes. तो ऐसे चीज़ों के लिए, ऐसे सिचुएशंस के लिए, फ्यूचर शेड्यूल्स, टाइम टेबल्स के लिए, ठीक है, या फिर आप किसी फिक्स प्लान्स के लिए भी क्या यूज करते हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस।
क्लियर। एंड आपको बस स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट, and lastly we also used to talk about the future afterwards such as when, until, before, after and as soon as. ऐसे केस में भी हम क्या यूज कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, लाइक he will call you when he has time, not will have, clear. I won't go out until it stops raining, clear. I will give you the book before you go. I'm going to make a dinner after I watch the news. And last, she will come as soon as her babysitter arrives. So lastly, we are saying that we are basically talking about the future afterwards such as when, until, before, after, as soon as. तो इनके साथ भी हम क्या use कर रहे हैं, simple present tense. Clear? Next. The next one is present continuous tense. So see, present continuous tense को समझने का तरीका क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जो काम अभी प्रेजेंटली आप कर रहे हो. सी, इट बेसिकली एम्फेसिस, इट बेसिकली फोकसेस ऑन द कंटिन्यूइंग नेचर ऑफ एन एक्शन, ऑफ एन इवेंट और अ कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ सारा इज राइटिंग द लेटर. कि अभी सारा क्या कर रही है, तो सी इज बेसिकली राइटिंग अ letter. So if I talk about the structure, then Sara is subject here, is helping verb here, and writing is verb का first form plus ing, and वो क्या कर रही है, क्या लिख रही है वो, तो she is basically writing the letter, so the letter is here an object. Clear? The next, I am studying English now. आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो English पढ़ रहे हो. So I is basically the subject here, studying is verb का first form plus ing, M is basically the helping verb here, and you have starting what, English, then English is basically an object here. Clear? So this is basically about the present continuous tense. और present continuous tense को पहचानने का बस यही तरीका ध्यान रखो कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, वो क्या बन जाता है, present continuous tense. ठीक है, और helping verbs ध्यान में रखने आपको is MR. Clear? Next. The next one is present perfect tense. See, if I talk about the present perfect tense, then as you know, मैंने आपको बताया था कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, कि जो काम आप प्रेजेंटली कर चुके हो, तो that is basically going to be started under this. So it is basically used to describe an action that began in the past or continues into the present or is just been completed. And if I talk about the structure here, then the structure will be subject plus has or have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये क्या बन गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बन गया. क्लियर? तो एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं. आई हैव प्लेड. सो आई इज बेसिकली द सब्जेक्ट, हैव इज बेसिकली द हेल्पिंग वर्ब एंड प्लेड इज बेसिकली द वर्ब का थर्ड फॉर्म. एंड आपको एक ट्रिक बताऊं, जितने भी परफेक्ट हैं उनके साथ क्या यूज करना होता है, थर्ड फॉर्म. तो अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, थर्ड फॉर्म. पास्ट में हमने परफेक्ट में क्या यूज किया था, थर्ड फॉर्म. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है. क्लियर? नेक्स्ट, ही और शी हैज प्लेड. तो ही और शी इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट, हैज इज बेसिकली द हेल्पिंग वर्ब, एंड इफ आई टॉक अबाउट द प्लेड हियर, देन इट इज बेसिकली वर्ब का थर्ड फॉर्म. सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब ये क्या फोकस करता है, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो इट इज बेसिकली यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, an event or a condition that has began in the past and continues into the present. And if I talk about the structure, then the structure is subject plus has, have plus been plus verb की first form plus ing plus since या for plus object. तो ये क्या बन गया हमारा स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर फॉर व्हाट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल है, आई हैव बिन स्टडिंग. सो आई इज बेसिकली द सब्जेक्ट हेयर, हैव इज बेसिकली द हेल्पिंग वर्ब हेयर, एंड स्टडिंग दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. और अगर मैं यही कह देती कि मैं 2 घंटों से पढ़ रही हूँ, तो क्या बन जाता, फॉर 2 years. मैं बचपन से पढ़ रही हूँ, तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस चाइल्डहुड. तो आपको फॉर और सिंस के भी यूज साथ के साथ ही ध्यान में रखने हैं. क्लियर? नेक्स्ट है, ही और शी हैज बीन प्लेइंग.
he or she is the subject here, has is the helping verb here, and playing is basically what? Verb ka first form plus ing. Clear? So this is all about the present perfect continuous tense. Clear? Next. Now come to the next part, that is future tense. If I talk about the future tense, then it is also like, it is divided into 4 kinds. That is simple future tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. ठीक है, तो अब एक एक करके देख लेते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या है. तो सी सिंपल फ्यूचर टेंस is used to refer to an action, an event or a condition that will take place in the future. मतलब ये काम, ये एक्शन, ये इवेंट अभी नहीं होना, पास में नहीं हो गया, कब होगा? आने वाले दिनों में, फ्यूचर में. ठीक है, तो इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. I shall study. So I is basically the subject here, shall is the helping verb here, and study is verb ka first form. Clear? Next, he or she will play. So he or she is subject here, will is the helping verb here, and play is verb ka first form. So this is basically about the simple future tense, जिसको कि आप यूज कर रहे हो किसी भी एक्शन के बारे में बताने के लिए, लेकिन वो काम आपने अभी नहीं करना, वो आने वाले दिनों में करना है. ठीक है, जैसे मैं पढ़ाई करूंगी, आई शैल स्टडी. वह लोग खेलेंगे. ठीक है, ही और शी विल प्ले. अभी खेल नहीं रहे, वो खेलेंगे. क्लियर? तो इनके साथ हम कौन सा फॉर्म लगाते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. क्लियर? नेक्स्ट. Next है future continuous tense. If I talk about the future continuous tense, then it is basically used to describe an ongoing action that will take place in the future. मतलब कोई ऐसा काम जो कि अभी नहीं, फ्यूचर में होने वाला होगा. ठीक है, and this is used for a continuing action that will continue in the future. So see, if I talk about the future continuous, तो future continuous का structure क्या होता है? Subject plus shall will plus verb की first form प्लस बी. ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट, सॉरी, शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, इट मीन्स आई शैल बी प्लेइंग. आई इज सब्जेक्ट हियर, शैल इज हेल्पिंग वर्ब हियर. देखो हमने बी भी लगाया इनके साथ, एंड प्लेइंग दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए. क्लियर? Next है he or she will be playing. तो he or she is subject here, will be is going to be the helping verb, and playing that is going to be a verb की first form plus ing. तो future continuous tense क्या describe करेगा? तो it will describe about an ongoing events that will happen in the future, not right now. Clear? Next. Next है future perfect tense. So future perfect tense is basically used to describe an action that will be completed in the future before beginning of a new action. ठीक है, तो ये जो इवेंट है ये कब होने वाला है? फ्यूचर में होने वाला है. ये इवेंट आप फ्यूचर में कंप्लीट करोगे बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, पहले तो स्ट्रक्चर देख लो क्या होता है. इट विल बी सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म plus object. Clear? So see, with structure, examples, I is the subject here, shall have is basically the helping verb here, done is basically the verb ka third form, and my work is object. I shall have done my work. Clear? Sam will have played. Sam is basically the subject, will have is the helping verb, and played is basically verb का third form. तो आपको मैंने बताया था कि परफेक्ट में मोस्टली वर्ब का थर्ड फॉर्म ही, मतलब मोस्टली भी क्या, थर्ड फॉर्म ही यूज होता है. तो आई शैल हैव डन माई वर्क में आपने देखा डन इज बेसिकली वर्ब का थर्ड फॉर्म है, एंड प्लेड इज ऑल्सो थर्ड फॉर्म है. तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है और उसके बेसिस पे सेंटेंस फॉर्मेशन करना है. क्लियर? नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज future perfect continuous tense. So future perfect continuous tense is used when an action is to continue to a certain point of time in future. मतलब कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम तक क्या होने वाला है, कंटिन्यू रहने वाला है. इट मीन्स इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर,
So then structure will be subject plus shall will plus have plus been plus verb की first form plus ing plus object. अच्छा, यहाँ पे सिंस और फॉर की बात नहीं आएगी बिकॉज ये इवेंट आप फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पे फॉर और सिंस की तो कोई बात आएगी ही नहीं. सो फॉर एग्जाम्पल दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड बिफोर यू रीच. So see, you are saying, you are watching here that they is basically the subject, will have been is basically the helping verb, and playing is basically verb का first form plus ing, and आप क्या खेलने वाले हो, फुटबॉल खेलने वाले हो, तो these all are going to be the object. Next, I will have been helping him to do the task before the class starts. So I is basically the subject here, will have been is the helping verb here, and the task before the class starts, it means we are basically talking about the object here. Clear? और helping is here the verb का first form plus ing. तो अगर आपको ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाने के लिए हमारा क्या स्ट्रक्चर है, तो देख लो आप यहाँ पे that it is basically used when an action is to continue at a certain point in future, and the structure is subject plus shall will plus have plus been plus verb की first form plus ing plus object, and here no since no for will be used. Clear? Next. Now let's revise tense. ठीक है, अभी आपने देखा कि that tense is basically divided into three kinds, that is present tense, past tense and future tense. तो अब एक एक करके हम सारे structures revise करते हैं, और बच्चों आपको सारे structure आपके tips पे होने चाहिए, and before learning this structure आपको verb forms भी clear होने चाहिए. So see, if I talk about verb forms, then verb is basically divided into three parts. ठीक है, that is verb का first form, second form and third form. These three parts are most important. Clear? तो फर्स्ट फॉर्म में तो हम नॉर्मल जैसे डू वर्ड ले लेते हैं, तो डू इज बेसिकली द फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म में वो डिड बन जाता है, एंड थर्ड फॉर्म में वो क्या बन जाता है, डन. क्लियर? और अगर वैसे ही आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा देते हो तो क्या बन जाता है, डज. क्लियर? और अगर आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हो तो क्या बन जाता है, डूइंग. तो इस तरीके से आपको सारे फॉर्म्स आने चाहिए, क्योंकि आप टेंस के स्ट्रक्चर्स में वर्ब के फॉर्म्स को भी यूज करते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब के फॉर्म्स ही होते हैं, बिकॉज आप एक्शन को प्रेजेंटली, पास्ट और फ्यूचर बेसिस पे डिस्क्राइब कर रहे होते हो. क्लियर? तो अभी हम अगर इसके स्ट्रक्चर को रिवाइज करें, तो एज यू नो दैट टेंस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. सो इफ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंट टेंस, देन प्रेजेंट टेंस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपल प्रेजेंट को पहचानने का क्या तरीका है, तो आप क्या बोलोगे, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस. और स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट. क्लियर? Next, if I talk about the present continuous tense, then the structure will be subject plus SMR plus verb की first form plus ing plus object. Clear? If I talk about the present perfect tense, then subject plus has, have plus verb का third form plus object. If I talk about the present perfect continuous tense, then it will be subject plus has, have plus been plus verb की first form plus ing plus since या for plus object. तो एक बार इसके structures और examples revise कर लेते हैं. First हम मैं present को ले रही हूँ, तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से. तो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अभी मैंने बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आप फर्स्ट के साथ एस और ईएस भी लगा सकते हो. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट. क्लियर? आई वॉच वीडियोज, आप क्या देखते हो, वीडियोज देखते हो, तो आई इज बेसिकली द सब्जेक्ट हियर, वॉच इज द वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड वीडियो इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट. सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट. नाउ नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट आई एम वॉचिंग वीडियोज. सो स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. क्या आप क्या देख रहे हो, तो यू आर बेसिकली वॉचिंग वीडियोज. देन आई इज द सब्जेक्ट, एम इज बेसिकली द हेल्पिंग वर्ब, एंड वॉचिंग इज बेसिकली द वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड वीडियो इज द ऑब्जेक्ट हियर. क्लियर? नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि जो काम आप कर चुके हो, प्रेजेंटली कर चुके हो, दैट मीन्स आई हैव वॉच्ड वीडियो. दैट मीन्स स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. So I is the subject here, has, have is the helping verb here, and watched is basically the third form here. ठीक है? And video is the object. Clear? तो ये ध्यान रखना है. Next है present perfect continuous tense. Present perfect continuous का structure क्या बताया, subject has, have plus been plus verb की first form plus ing plus
object. So I is basically the subject here, have been is basically the helping verb here, watching is basically the verb ka first form plus ing, and video is basically what? Object here. Clear? So this is basically all about the present tense. Now we will revise past tense. If I talk about the past tense, then as you know, अभी हमने previously सारी चीजों को देखा, तो past tense is also divided into 4 kinds. That is simple past, past continuous, past perfect continuous. तो अब इनके structures भी याद कर लेते हैं, और ये फटाफट आपको भी रिवाइज करना, साथ के साथ ही कॉपी में लिखना स्टार्ट करो या टाइमर के साथ मेरे साथ बोलना स्टार्ट करो. सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर फॉर ऑल द पास्ट टेंस. अब हम इसको एक एक करके एग्जाम्पल से दोबारा रिवाइज करते हैं. सो लेट्स सी द सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस का भी मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो आई इज द सब्जेक्ट हियर, watched is the verb ka second form here, and video is basically the object here. Clear? Now if I talk about the past continuous tense, then here I was watching video, that is was verb plus verb ki first form plus ing plus object. So I is the subject, was is the helping verb here, and watching is the verb ka first form plus ing, and video is basically the object here. Now if I talk about the past perfect tense, then the structure is subject plus had plus verb ka third form plus object. So here we is the subject, had is the helping verb, painted is third ka form, and the house is object here. So this is basically about the past perfect tense. Now next, past perfect continuous tense. If I talk about the past perfect, then the structure is subject plus had plus been plus verb ki first form plus ing plus since or for plus object. So I is basically the subject, had been basically the helping verb, watching is basically the verb ka first form plus ing, and the object is here watching videos, है ना? Videos is basically the object here, and you are doing from what? From how much time? Since morning. So since आप आगे लगा ही सकते हो जब आप longer period के बारे में बात करते हो, ठीक है? So this is basically all about the past tense. Now we will revise the future tense. Clear? So see, future tense is also divided into 4 kinds. That is simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. So अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो सिंपल फ्यूचर का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, or you can say first you have to add been here. So subject plus shall will plus have plus been plus verb ka first form plus ing and then object. Clear? So this is all about the future. तो अब हम example से देख लेते हैं. So simple future tense, I will watch videos. So I is the subject here, will is the helping verb here, watch is the verb ka first form, and video is the object here. Clear? Next, future continuous tense. So I is basically the subject here, will be watching. That is, will be watching here, will be is the helping verb, watching is the verb ka first form plus ing, and video is the object here. Next, future perfect tense. So subject plus shall will plus have plus third form plus object. So I is the subject here, will have is the helping verb, watch is the third form, video is the object. ठीक है? Future perfect continuous tense. Future perfect subject plus shall will plus have plus been plus verb की first form plus ing plus object. तो see, I is the subject here, will have been is the helping verb, starting is the verb ka first form plus ing, and since morning you can say that is basically the object. Clear? So see students, अभी हमने ये देखा कि टेंस क्या होता है और टेंस के कितने टाइप्स होते हैं. टेंस के टाइप्स में हमने वर्ब फॉर्म्स की भी बात करी. तो एज यू नो डैट यू आर बेसिकली ऑन द ईजी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एंड ईजी है एग्जाम आपको ये मैराथन प्रोवाइड कर रही है, सारे इंग्लिश ग्रामर का मैराथन प्रोवाइड कर रही है. तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, एंड एज यू ऑल नो डैट योर हाफ ईयरली एग्जाम्स आर अप्रोचिंग. So this is going to be a very crucial for you all.
क्लियर? सो व्हाट आई बेसिकली वांट इज कि जैसे जैसे आपने स्ट्रक्चर रिवाइज किया है, आपने टेंसेस को रिवाइज किया है, अब आप क्या करो, वर्कशीट्स करो, बीबीसी कॉम्पैक्टा वगैरह से आप वर्कशीट्स करो. इवन ईजी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी वर्कशीट्स प्रोवाइड कर रहा है. तो आपको अगर यहाँ से वर्कशीट्स लेनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और लाइक कमेंट सेक्शन में आके आप हमें अपने सारे डिटेल्स दो, हम आपको वर्कशीट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. एंड आने वाले दिनों में हम बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी लेकर आने वाले हैं. एज यू नो दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर्स नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, preposition, conjunction, determiners and articles are also there. Not in the parts of speech, but others topics are also coming in this marathon, and the topics of active, passive, and you can say direct and indirect speech, all are going to be coming here on the Easy Hai online platform. So now it is going to be very easy for you all, because अब आप अपने इंग्लिश ग्रामर के लिए प्रिपेयर होने वाले हो. बट मुद्दा ये आता है कि एग्जाम में क्या ऐसे स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन आएंगे? तो बिल्कुल नहीं. आपको अगर स्ट्रक्चर्स क्लियर होंगे तो अगर एडिटिंग ओमिशन वाले क्वेश्चन आते हैं फॉर क्लास 11, 12 एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास 10, क्योंकि 10th वाले बच्चे सीनियर हो चुके होते हैं, तो उनको तो बस सारे रूल्स रिवाइज कर लो और एडिटिंग ओमिशन वाले क्वेश्चन में अप्लाई करो. बट जो जूनियर बच्चे हैं, जो 6th क्लास के हैं, 5th क्लास के हैं, या फिर यू कैन से 6 to 9th तक के जो बच्चे हैं, उनके पास तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चन आ जाती हैं टेंसेस को लेके. तो अगर आपको सारे रूल्स रिवाइज होंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करोगे. सो फॉर मोर क्लासेस अपडेट, स्टे ट्यून टू आवर चैनल इजी है ऑनलाइन, एंड फॉर मोर एग्जामिनेशन अपडेट, स्टे ट्यून टू आवर चैनल इजी है एग्जाम. थैंक यू सो मच.